یہ 1992 کا واقعہ ہے۔ امریکی پابندیاں پاکستان پر لگ چکی تھیں اور پاکستان کے پاس امریکی F-16 کے علاوہ کوئی اور قابل ذکر جنگی جہاز نہیں تھا۔ امریکہ نے جہازوں کے سامان کی فراہمی بھی معطل کر رکھی تھی۔ جنگ لڑنا تو ایک طرف، پاکستان اپنے پائلٹس کے فلائنگ آورز بھی پورے نہیں کروا سکتا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں پاکستان نے چائنا کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ چائنا کا ایک بھی جنگی جہاز بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں تھا۔ پاکستان اس وقت بے یقینی اور یتیمی کی کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا اور ہندوستان پاکستان پر اپنی فضائی برتری کے خواب کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب تمام راستے بند ہو گئے تب پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے جنگی جہاز بنانے میں خود مختاری حاصل کرنے کا فیصلہ کر ڈالا۔ برسوں تک اس آئیڈیا پر کام ہوتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور ایئر چیف مارشل مصعب علی میر نے اربوں ڈالر کے اس پروجیکٹ کو ایک قابل اعتماد ذہین اور محب وطن شخص کو سونپنے کا فیصلہ کیا۔ دن رات کی تگ و دو کے بعد انہیں ایک ایسا شخص مل گیا جو اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ان کا سب سے قابل شاگرد تھا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو امریکہ سے F-16 کو اڑا کر پاکستان لانے والا پہلا پائلٹ تھا۔ یہ نوجوان ان پائلٹوں میں بھی شامل تھا جنہوں نے F-16 کی 1 سال کی ٹریننگ صرف 5 ماہ میں مکمل کر لی تھی، اور ایئر مارشل مصعب علی میر کے شاگردوں میں سے صرف اس نوجوان کو سوارڈ آف آنر ملنے کا اعزاز حاصل تھا۔ اس نوجوان نے پروجیکٹ کی کمان سنبھالتے ہی اعلیٰ قیادت کی مشاورت سے فیصلہ کیا کہ پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر F-16 سے بہتر اور نیا جنگی طیارہ بنائے گا، اور ساری دنیا خصوصاً ہندوستان اس طیارے کی کارکردگی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں داندوں تلے دبا لے گی۔ انہوں نے چائنا کی ایک کمپنی کا انتخاب کیا اور انہیں اپنی ضروریات بتا دی گئیں، اور نوجوان نے طیارے کی تیاری اور اس کی نگرانی شروع کر دی۔ چائنیز اسے ایک عام آدمی سمجھ کر اپنے مطابق جہاز بنانے لگے، لیکن اس نے چائنیز کے اس ڈیزائن کو مسترد کر دیا اور انہیں مجبور کیا کہ چاہے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے، جو خصوصیات وہ چاہتا ہے وہ اس جہاز کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ چائنیز کمپنی کے ساتھ شدید اختلاف رائے اور جھگڑوں کے بعد چائنیز کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص اپنے مطالبات سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پروجیکٹ کی نگرانی کرنے کے لیے کئی راتیں اس نے چائنیز کی فیکٹری میں ہی گزار دیں، وہیں کھاتا اور وہیں سوتا تھا۔ اس پاگل پن کو دیکھ کر چائنیز بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور پھر دن رات ایک کر دیا۔ امریکیوں کو جب خبر لگی تو انہوں نے اس نوجوان کو خریدنے اور ڈرانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی نگرانی کی جانے لگی۔ عورت، دولت، شہرت، عیاشیاں، جائیدادوں سمیت ہر طرح کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ نوجوان اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ پروجیکٹ مکمل نہ ہوا تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ پھر آخر دن رات کی محنت رنگ لائی اور اگست 2003 کو اس شاہکار لڑاکا طیارے نے اپنی پہلی اڑان بھری۔ برسوں کی محنت اور وطن سے محبت کا عملی ثبوت ہوا میں پرواز کر رہا تھا۔ پائلٹ لگاتار پیغامات بھجوا رہا تھا کہ یہ شاہکار ہر طرح سے مکمل ہے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو تیار ہے۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں کامیابی کے آنسو، پیشانی پر شکرانے کے سجدے اور زباں پر شکرانے کے کلمات اور چہرے پر اطمینان کے تاثرات واضح تھے۔ اس نوجوان نے اس طیارے کو اپنا بیبی قرار دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میں نے اپنے بیبی کو دشمن کا لحاظ کرنا سکھایا ہی نہیں۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر 27 فروری 2019 کو اسی بیبی نے ہندوستان کے 2 طیاروں کو دھول چٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ واقعی یہ دشمن کا لحاظ نہیں کرتا۔ دوستو، مجھے یقین ہے کہ اب تک آپ اس شخص کا نام جان چکے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ JF-17 تھنڈر منصوبے کے بانی اور ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی کامیابی اور حب الوطنی کی مختصر سی کہانی ہے۔ آپ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی کامیابی کی کوششوں اور نیک نیتی کو ذہن نشین رکھیے اور JF-17 تھنڈر کی تاریخ اور خصوصیات پر ایک نظر ڈالیں تو اس محب وطن سپوت کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ JF-17 تھنڈر نے اپنی پہلی اڑان 25 اگست 2003 کو چائنا میں بھری۔ 12 مارچ 2007 کو اسے پاکستان ایئر فورس میں شامل کر لیا گیا اور 23 مارچ 2007 کو اسے پاکستانی عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ JF-17 تھنڈر نے آتے ہی دنیا بھر کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لی۔ اسے 2010 میں برطانیہ کے ایئر شو میں بھی شامل کیا گیا اور پوری دنیا میں اس سے پہلے جتنے بھی شو منعقد کیے جاتے ہیں ان میں چائنا کے کسی جنگی جہاز کو پرفارم کرنے کے لیے نہیں بلایا جاتا تھا۔
लेकिन JF-17 थंडर तैयारों को पूरी दुनिया के तमाम काबिल जिक्र एयर शोज में बुलाया जाता है। इस तैयारे ने 2018 में पोलैंड में मुनक्किद होने वाले एयर शो में अपनी जीत के झंडे गाड़े हैं और पूरी दुनिया को एक मर्तबा फिर से अपना गर्विता कर लिया है। ये कामयाबी पाकिस्तान और चाइना के लिए एक एजाज है। JF-17 थंडर ब्लॉक 2 तैयारे जदीद तरीन मिसाइल, गन और बम टेक्नोलॉजी से लेस हैं। इनमें 23 मिलीमीटर दहाने वाली दोहरी नाल की हामिल GSH-2-23 तोप नस्ब है। इसके अलावा इन तैयारों में 7 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिनमें से 4 इनके परों के नीचे, 2 विंग टिप्स और 1 तैयारे के फ्यूजेलाज यानी उसके मरकजी ढांचे के नीचे होता है। दोस्तों, इसके साथ नस्ब किए जाने वाले हथियारों की लिस्ट बहुत तवील है। फजा से फजा में हमला करने के लिए PL-5E2 शॉर्ट रेंज और हद निगाह से दूर तक मार करने वाला SDA BVR मिसाइल शामिल हैं। दोस्तों, ये BVR मिसाइल क्या होता है, इसके मुतालिक आइए इस तैयारे के बानी एयर मार्शल शाहिद लतीफ ही से सुनते हैं। देखिए, जहाज तो उनके पास भी है, मसलन उनके पास मिराजेस हैं, लेटेस्ट वाले जिनको मिराज 2000 कहते हैं, उनके पास Su-30 हैं, वो भी फ्रंट लाइन जहाज हैं जो उन्होंने एक हमने गिरा भी दिया। और अब रफाल जो हैं रेगुलरली उनके पास आने शुरू होने, कुछ मेरा ख्याल पहले पहुंच भी गए। रफाल का और हम अगर कंपैरिजन करें तो क्या एक ही कैटेगरी है ना, सारी 4th जनरेशन जहाज हैं। इससे अगला जो स्टेज है वो 5th जनरेशन, जो कि अमेरिका ने बना लिया, चीन ने बना लिया, रूस ने, और हमने अब ये खुद बनाना है। वो जो खुद नसारी की का जो हमने उसी वक्त जो हमारी विजन थी, जो मैंने लिखी थी कि JF-17 हम चीन की मदद से बना रहे हैं। याद रखना कि अगला 5th जनरेशन जहाज जो है ये 4th जनरेशन, 5th जनरेशन हमें खुद बनाना है। इस वक्त हिंदुस्तान के पास 5th जनरेशन है कोई? किसके पास? हिंदुस्तान के नहीं, कोई 5th जनरेशन नहीं, 4th जनरेशन। किस एतबार से तो हम इक्वल हैं, तो इसलिए हम उसके लेवल पे हैं। मगर जो एज है मैंने आपको बता दिया, वो हमारी ट्रेनिंग है और हमारा जज्बा है। इसको आप नहीं इक्वेट कर सकते ना। ये कोई ऐसी सॉफ्टवेयर तो नहीं है कि जो यहाँ पे चिप लगा दोगे। तो इसलिए उस तरह हमें फौकियत है और इंशाल्लाह हमेशा 65 की जंग में भी क्या था, यही था ना, हम उनसे 3 गुना कम थे। वही बदर वाला जमाना याद रखें, वो 1000 और इधर हम 300, 1/3 था ना। 65 में भी यही था। फिर उनकी क्या हालत हुई? वो MM आलम्स कहाँ से पैदा हुए? वहीं से पैदा हुए ना, सरफराज रफीकी, MM आलम। तो ये इन लोगों ने उनके जो है वो छक्के छोड़ा दिए थे। हम वहां जाते थे तो उनके जहाज तबाह कराते थे, रनवे पे खड़े हुए आग लग जाती थी। वो हमारी तरफ आते तो हम उनको मारते थे। फिर वो डर गए, तो हमारी बेसिस पे आने से पहले ही वो कोई जंगल वंगल में बम फेंक देते थे और जाके कहते थे मैं उनकी बेस तबाह कराए। तो चूंकि IT का जमाना नहीं था, दिखाया नहीं जा सकता था, तो वो तो अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर आते ही नहीं थे। उन्हें पता था कि हमें वहां पे भी मार गिराएंगे। इतना तहलका था हमारा उस वक्त। आज भी ये 27 फरवरी के बाद उनके हाथ पांव कांपेंगे और कांप रहे होंगे। ये हमारे साथ हुआ क्या एक ही दिन के अंदर? तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैंने कहा रवायती हो गैर रवायती हो, कोल्ड स्टार्ट आपने ट्राई किया, आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल बना लिया, आपके बिलियंस ऑफ डॉलर जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाए थे उन्हें सारे जीरो कर दिए। तो अब कुछ और भी ट्राई कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह आप हमें तैयार पाएंगे। हमारे पास काउंटर टैक्टिक्स, काउंटर ऑफेंसिव, और ये हमारा हक है और हम इंशाल्लाह करेंगे। अब लास्ट कमेंट, किस तरह से एंगेज किया था? जाहिर आप तो थे, बानी थे उसके JF-17 के, उस वक्त जो अभिनंदन को कैसे एंगेज किया, फिजा में कैसे एंगेज किया जाता है सर? ऐसे किया जाता है जी, ऐसे एंगेज किया जाता है कि ये जहाज जो था ये उस इलाके में आ गया, हमारे इलाके में आ गया। लाजमी चीज है कि उसको भेज दिया गया कि वहां बड़ी एयर एक्टिविटी हो रही है, तो तुम जाओ और उनके जहाज गिराओ। वो हवा में बहुत सारे उनको रेडार पे नजर आने शुरू हो गए जहाज। अच्छा, रेडार पे मॉनिटरिंग होती है, चीज है, उधर भी मॉनिटरिंग थी, हमारे यहाँ भी मॉनिटरिंग थी। तो उसके अंदर वो आ गया। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या टैक्टिक्स हैं कि MiG-21 और वो पिच कर रहे हो, वो तो MiG-21 तो फ्लाइंग कॉफिन्स का हिस्सा है। फ्लाइंग कॉफिन मतलब जो मतलूब हो गए और आप उस बंदे को भेज रहे हो और विंग कमांडर है। फिर रेडार ऐसे मौके पे गाइड करता है, आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है रेडार के साथ। आप उससे हमने पूछा कि तुम्हें रेडार नहीं, कह रहा मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था। और इतनी रेडार के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर वॉल्यूम था कम्युनिकेशन का कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मेरे पास जहाज था और मैं चली आ रहा था, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा। ये प्रोफेशनलिज्म है उनका। अगर तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो तो टर्न अबाउट एंड गो बैक। आपके इमरजेंसी प्रोसीजर्स होते हैं ना। तो वो आया, उसको मारा, इसी तरह आपने Su-30 को मार दिया। और अभी हमारे पास और भी बहुत सारे जहाज लॉक्स थे, उसके ऊपर हमने लॉक किए हुए थे JF-17 के ऊपर। सर ये लॉक करना क्या? लॉक का मतलब ये होता है, रेडार जो है तो जब आप एक जहाज को देखते हैं तो उसको लॉक करने का मतलब ये कि अब आपका जो BVR मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, अब उसकी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन उस पर। अगर मैंने किसी को लॉक किया है तो अब अपना मैं BVR मिसाइल अगर यहाँ से मारूंगा, मैं उस जहाज को नहीं देख रहा। BVR का मतलब ये होता है स्टैंड ऑफ वेपन। और अगर उसकी 40-50 किलोमीटर रेंज है, जहाज तो बहुत दूर है, पर रेडार ने कह दिया कि तुमने इस जहाज को लॉक कर लिया,
اب اس मिसाइल का काम है उस लॉक जहाज के पीछे भागना, उसको खुद पकड़ना है। खुद पकड़ेगा, वो लॉक हो चुका है ना, उसकी वेव्स, उसकी रेस उसको काबू करके अब वो जहाज इधर उधर होगा तो उसका पीछा करेगी और उसको जाके मारेगी। वो मिसाइल उसको जाके उसको लगे, वो भी जहाज को नहीं देख रहा, पर एक मिसाइल आया ठा करके उसको लग गया। उसको पता ही नहीं चला। Su-30 के साथ यही हुआ है, उसको तो पता ही नहीं चला, लिहाजा वो क्रैश भी कर गया। तो सर जो मिसाइल था वो हमारे JF-17 में था फिक्स, लाजमी चीज है, और वहां से फिक्स हुआ गया, और मिसाइल फिक्स हुआ। को उसको मिसाइल को दिखा दिया गया कि ये मेरा टारगेट है। अब जो मिसाइल होता है इसका अपना अंदर छोटा रडार होता है, वो रडार उसको पकड़ के और उसके सेंट चल पड़ता है, अब उससे आप बच नहीं सकते। वो भागते मतलब जहाज की स्पीड से ज्यादा भागते हो। नहीं, मेरा मतलब है कि वो डिपेंड करता है, अगर जहाज उसको मुड़ जाए और चलना शुरू कर दे दूर और ये मिसाइल जा रहा है, उसका रेट ऑफ क्लोजर वो एक होता है, उसके टैक्टिक्स होते हैं, नेगेटिव होना शुरू हो जाए, पर उसको शायद पता ही नहीं चला कि मिसाइल जो है मेरे ऊपर लॉक और मेरी तरफ आ रहा है। रडार वार्निंग रिसीवर्स भी हुआ करते हैं, डिपेंड करता है। तो हमारे JF-17 में है रडार वार्निंग रिसीवर, सब कुछ है, सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। हमने इसीलिए स्टेट ऑफ द आर्ट वो चीज़ बनाई हुई है ना कि आपको लॉक करने की कोशिश कर रहा है, उसका ब्रेक लॉक करना, वो टैक्टिक्स है, वो जरा टेक्निकल मामले हैं। पर बात यह है कि जब मिसाइल को दिखा दिया, लॉक कर दिया, अब मिसाइल का काम है उसको जाके स्ट्राइक करना, और इस दौरान आप उसको लॉक करके दिखा के आप बेशक टर्न अबाउट करें, अपने घर जा रहे हैं, आपका मिसाइल उसकी तरफ जा रहा है, मिसाइल जहाज छोड़ निकल जाता, निकल गया, वो चल पड़ा, निकल गया, वो चल पड़ा, आपने रिलीज कर दिया। अब आपने मिसाइल के साथ नहीं जाना। वो डॉग फाइट का जमाना था जब जहाज लड़ते थे और मिसाइल मारते थे, छोटे शॉर्ट रेंज मिसाइल जिनको आप कहते हैं। ये BVR है, बियॉन्ड विजुअल रेंज, और ये बियॉन्ड कैपेबिलिटी विजुअल रेंज मतलब आपकी हद निगाह से भी आगे लाजमी जाएगा। चीज है। इसी को बियॉन्ड विजुअल रेंज पहले F-16 में थी, अब हमारे पास JF-17 में भी है, तभी तो ये इतना पोटेंट जहाज है। महफूज हाथों में है, पूरी नेशन के लिए, जबरदस्त, पूरी जबरदस्त। नेशन के लिए पैगाम है, महफूज हाथों में। हमने मेहनत की हुई है, JF-17 में हमने बड़ी मेहनत की, और हमने एक ऐसी चीज बना ली कि आज आप हमें थ्रेट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारा F-16 पुरसे रोक लूंगा, फ्लाइंग नहीं कर सकोगे। ये तो 90 की दहाइयों की थ्रेट थी, और इन सारी चीजों की उसमें इक्विपमेंट है। अपना डिफेंस, जैसे मैंने रडार वार्निंग रिसीवर की बात कर दी, इसी तरह आपका ECM पॉड होता है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स वाला। आप पे अगर कोई चीज़ है तो उसको डॉज कैसे करना है, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, पर उस जहाज़ के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, और इसीलिए हमने इसको F-16 से भी एक रुतबा ऊपर दिया, JF-17 F-16 से ऊपर। और ये आपको सुन के खुशी होगी कि जब F-16 और JF-17 की आपस में फाइट हम करवाते हैं तो उसके अंदर JF-17 के जो पायलट्स हैं वो एंजॉय करते हैं इस फाइट को, जितना मजबूत। अच्छा, आपस में भी करते हैं? हम करते हैं, व्हाई नॉट? प्रैक्टिस, दैट्स गुड। प्रैक्टिस करते हैं ना, कि आपके खिलाफ अगर इस तरह का जहाज पिच किया जाए तो आपके टैक्टिक्स क्या होंगे, हम सिमुलेट करते हैं। यही तो ट्रेनिंग है, यही तो हमें बताया जाता है कि ट्रेनिंग में इतने मजबूत हो जाओ कि उनके 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी ताकत सामने आए तो आपने उसका भी मुकाबला करना है। यही ट्रेनिंग है आपकी। तो उसमें वो क्या कहते हैं पायलट कि यार हम JF-17 एक तरफ और एक तरफ F-16? ऑब्वियसली उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स है, उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स है, हम एक दूसरे को फाइट करते हैं, बड़ी टफ फाइट होती है। किसी की एक जगह स्ट्रेंथ है, किसी की दूसरी जगह स्ट्रेंथ है, तो ये फुल ऑफ स्ट्रेंथ है माशाल्लाह जहाज। सर जो मिसाइल मारता है वो पायलट खुद मारता है या रेडार सिस्टम उसको? नहीं, पायलट मारता है, हाथ तो पायलट के कंट्रोल। एक तरफ वो जहाज भी उड़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है जी। पायलट जो फाइटर पायलट है उसके ज़िम्मे बहुत कुछ होता है, उसने अपनी जान भी बचानी है, वो सारी जो स्क्रीन्स हैं उनको भी मॉनिटर करना है, मेरे ऊपर कुछ हो तो नहीं रहा उसको वो काउंटर भी करना है, ऑफेंसिव एक्शन भी लेना है, डिफेंसिव एक्शन भी लेना है। फाइटर पायलट जो है उसकी अल्टीमेट जो है वो जिंदगी ऐसे ही होती है। सर पीछे राब्ते में भी तो होता है? राब्ते भी होते हैं, जमीन की एजेंसीज हैं वो भी आपको गाइड भी कर रही होती है, मगर आपका जो एयरबोर्न रडार है सर वो तो टाइम बहुत कम होता है, टाइम बहुत ये फिर टाइम शेयरिंग होती है ना, कि मैंने किस वक्त में क्या करना है, गलत चीजें नहीं करनी, सही चीजें करनी है, ये टाइम शेयरिंग है। तो उसके लिए सर आप इंटरव्यू करते हैं, किस तरह का क्वालिटी का बंदा है यार जो जिस इतनी सारी चीजें लेके चल सकता है, कितना मुश्किल होता होगा ये? बहरहाल ये उसका काम है, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, ये उसके लिए चैलेंज है, और इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हम अपनी जान लगाते हैं। ट्रेनिंग का जबरदस्त जबरदस्त, यकीन मानिए दिल खुश हुआ ये सारी बातें सुन के। बेसीधे कश्मीर, चूंकि सर हम बॉर्डर लाइन पे रहते हैं तो हमें इस चीज़ का बहुत एहसास है, हमारे तो सामने है हिंदुस्तान, तो हमें इन चीज़ों पर बड़ा प्राइड फील होता है। बिल्कुल होना भी चाहिए, इसीलिए तो मैंने कहा माशाल्लाह मजबूत हाथों में, और ऐसे नहीं हम अपने नाम पे कोई आँच आने देंगे। और वही मैं कह रहा हूँ, 65 की जंग में भी हमने ये साबित किया था, और इस मरतबा तो एक दिन में साबित कर दिया। पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने कहा कि पाकिस्तान को सबकत हासिल हुई एक दिन की जंग में। ये दुनिया कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह।
जी तो दोस्तों देखा आपने कि ये किस कदर जबरदस्त टेक्नोलॉजी है जो कि पाकिस्तान हासिल कर चुका है। ये तैयारा और भी बहुत सारी जंगी सलाहियतों का मालिक है। फिजा से जमीन पर मार करने के लिए CM-1 एंटी रेडिएशन मिसाइल, जबकि फिजा से समंदर तक मार करने के लिए C-802 AK एंटी शिप मिसाइल और CM-400 AKG कैरियर किलर एंटी शिप मिसाइल नस्ब किए जा सकते हैं। इसके अलावा अमूमी मकासद के बमों में MK-82, 83, 84, रनवे तबाह करने के लिए मात्रा बम, जेवरेंडल और रॉक IMK-20 बख्तर शिकन क्लस्टर बम भी शामिल हैं। लेजर गाइडेड बमों में GBU-10, 12 और 16 बम, जबकि GPS से रहनुमाई लेने वाले LS-6 मिसाइल भी शामिल हैं। और इन सब के अलावा एयरबोर्न के G300 G सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड भी JF-17 थंडर ब्लॉक 2 का हिस्सा है। JF-17 थंडर ब्लॉक 2 12,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन ले जाने की सलाहियत रखते हैं। हमारे इस तैयारे को उड़ने के लिए तकरीबन 600 मीटर तवील रनवे दरकार होता है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 अभी तकमील के इख्तितामी मराहिल में है। और दोस्तों इस JF-17 थंडर ब्लॉक 2 के बाद आ रहा है JF-17 थंडर ब्लॉक 3। ये तैयारा अभी तकमील के इख्तितामी मराहिल में है। ये ब्लॉक 2 से कई गुना बेहतर है और अपनी खसूसियात की बदौलत तकरीबन 5th जनरेशन तैयारों के करीब तर होगा। इसका डिजाइन और इंजन मुकम्मल हो चुके हैं। ब्लॉक 3 में KLJ-7 ESA रेडार सिस्टम नस्ब होगा जो अपनी रेंज के एतबार से भारत को फरोख्त किए जाने वाले इसराइली राफेल तैयारों में नस्ब RBE-2 AESA रेडार के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर है। और 5th जनरेशन यानी 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारों में रेडार सिस्टम बहुत जदीद है और यही इस्तेमाल हो रहा है। और यही वो रेडार सिस्टम है जिसे दुश्मन के रेडार से पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की एवियोनिक्स F-16 के मुकाबले में कई हवालों से बेहतर है। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में हेलमेट माउंटेड साइट HMS टेक्नोलॉजी नस्ब की गई है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए पायलट को टारगेट लॉक करने के लिए तैयारे को टारगेट की तरफ मोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि टारगेट लॉक करने के लिए पायलट को टारगेट की तरफ एक नजर देखना होगा और पलक झपकने में टारगेट लॉक करके मिसाइल फायर हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी दुनिया में अभी बिल्कुल नई है और सिर्फ 5th जनरेशन तैयारों में ही इस्तेमाल हो रही है। अब जरा इन तैयारों के इंजन की बात कर लेते हैं। JF-17 ब्लॉक 1 और 2 में RD-93 इंजन इस्तेमाल हुए हैं जो कि 2222 किलोमीटर फी घंटा की इंतहाई तेज रफ्तार तक तैयारों को ले जा सकते हैं। जबकि ब्लॉक 3 में WC-30 का इंजन इस्तेमाल किया गया है जिससे हासिल शुदा रफ्तार 2500 किलोमीटर फी घंटा हो जाएगी जो इंडियन राफेल तैयारे के मुकाबले में भी ज्यादा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी तकरीबन F-16 ब्लॉक 52 जितनी है, जिसका मतलब ये है कि F-16 की निस्बत ज्यादा वजनी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। और इन्हीं खूबियों के साथ JF-17 5th जनरेशन कैटेगरी में शामिल हो जाता है। और सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि पूरी दुनिया में इसकी कीमत अपने मुकाबले के किसी भी तैयारे से कम है। अगर पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारत के राफेल तैयारों का मुआवजा किया जाए तो कारकर्दगी और खर्च के एतबार से पाकिस्तान को भारत पर वाज़ेह बरतरी हासिल होती है। एक राफेल तैयारे की कीमत में पाकिस्तान 3 JF-17 थंडर तैयारे तैयार करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों तारीख गवाह है कि पाकिस्तान से 4 गुना ज्यादा असला और फजाई कुव्वत होने के बावजूद पाकिस्तान को हिंदुस्तान पर हमेशा फजाई बरतरी हासिल रही है। इसकी वजह टेक्नोलॉजी में महारत के साथ हुब्बुल वतनी का जज्बा और मुल्क की हिफाजत का जुनून भी है। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने सेबर F-86 अमेरिकन तैयारे इस्तेमाल किए, जबकि भारत ने रूस से मंगवाए हुए नए MiG-21 तैयारे इस्तेमाल किए। जदीद तैयारों के होने के बावजूद भारत पाकिस्तान की एयर बेस के ऊपर आने की हिम्मत नहीं करता था। भारतीय तैयारे आते थे और एयर बेस से दूर बम गिराकर चले जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम एयर बेस की हदूद में दाखिल हुए तो तबाह और बर्बाद कर दिए जाएंगे। दोस्तों डॉग फाइट हो या दुश्मन के मुल्क के अंदर घुसकर उसके रनवे पर खड़े हुए जहाजों को तबाह करने का मिशन हो, पाक फजाइया ने अपनी बहादुरी, महारत और प्रोफेशनल अप्रोच के जरिए भारतीय फजाइया पर वाज़ेह बरतरी हासिल की थी। अगर 1971 की झड़पों की बात करें तो पाक फजाइया ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। ये जमीनी और सियासी झड़पें थी जिसमें पाक फजाइया शामिल नहीं थी। कारगिल की जंग में भी पाक फजाइया ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान की बरतरी वाज़ेह थी। कारगिल के बाद भारतीय और पाक फजाइया की जंगी सलाहियतों को नापने का दिन था 27 फरवरी 2019, जब भारत के 2 तैयारे MiG-21 और Su-30 पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए, जिसे पाकिस्तान के इन्हीं JF-17 थंडर तैयारों ने मार गिराया।
एक पायलट को गिरफ्तार किया और दुनिया के सामने पेश करके अपनी बर्तरी साबित कर दी। हिंदुस्तानी मीडिया और बीजेपी की सरकार के झूठे दावों और नारों ने पूरी दुनिया में उनका मजाक उड़ाया। यहाँ तक कि मोदी को यह बयान देकर पूरी दुनिया के सामने अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी कि राफेल तैयारे न होने की वजह से भारत को पाकिस्तान से शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन यहाँ इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि अगर राफेल तैयारे भी हों तो भी भारत पाकिस्तान से फ़ज़ाई महाज पर इसका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ जैसे जांबाज नहीं हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तानी एयर फोर्स की बर्तरी कायम करने के लिए वक्फ कर दी और हसन सिद्दीकी जैसे जवानों पर मुश्तमिल एक ऐसी फ़िज़ाई फ़ौज तैयार की है जो कारकर्दगी और हुब्बुल वतनी में अपना कोई सानी नहीं रखती। दोस्तों, हम इकरार करते हैं कि एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ हमारे हीरो हैं और आप आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल हैं, और पाकिस्तान की फ़ज़ाई बर्तरी की दास्तान आपके जिक्र के बगैर हमेशा अधूरी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़िज़ाइया बाइंदाबाद। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।